celebrated worldwide, that continues to inspire and captivate the world. Now we present before you a short film on India's rich heritage titled Aham Bharatam, I Am India. Mother, I bow to thee, rich with thy hurrying streams, bright with thy orchard gleams, cool with thy winds of delight, dark fields waving, mother of might, mother free. Glory of midnight dreams, over thy branches and lordly streams, clad in thy blossoming trees, mother, giver of ease, laughing low and sweet, Mother, I kiss thy feet. I kiss thy feet. I kiss thy feet. Speaker, sweet and low, Mother, to thee I bow. Mother, to thee I bow.
Shanti. A salute to the incredible India, a salute to the spirit of eternal Bharat. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming our distinguished guest, Ms. Audrey Azoulay, Director General UNESCO, as I graciously invite her to address the August gathering. Please welcome Ms. Audrey Azoulay. Your Excellency, Prime Minister of the Republic of India, Shri Narendra Modi, Honorable Ministers, Mr. Chairperson of the World Heritage Committee, Ambassador and Permanent Delegate of India to UNESCO, distinguished guests, Excellencies, ladies and gentlemen, dear friends, Namaste. Let me start by expressing our deep gratitude to our host, the Prime Minister of India, who is welcoming the world tonight around this essential notion that 195 countries have agreed on: the protection of the cultural and natural heritage of humanity, bequeathed to us over the centuries in all its splendid diversity. The World Heritage Committee is meeting here in New Delhi, in India, for the first time in its history, to preserve, promote, and pass on to the future generations humanity's priceless legacies established over time. Let me also take this opportunity to thank the Ministry of Culture and the Archaeological Survey of India, which have co-organized this important meeting with us. Since being founded over 160 years ago, the Archaeological Survey has protected India's world heritage, but also more than 3,600 ancient monuments and archaeological sites across the country. And in recent years, we've been happy to work with ASI around the world, especially in the region and in Cambodia, where it has contributed to the restoration of Ta Prohm, one of the most important temples at the Angkor Wat World Heritage Site. This commitment is inspiring, and I understand India's support will be further reinforced to pave the way for more international cooperation on the occasion of this committee and in the spirit of the World Heritage Convention, which is also based on solidarity. I thank you for this reinforced commitment. For us, who are responsible for protecting world heritage, the challenges are tremendous, as the world undergoes transformations in every area, driven by the digital revolution and climate disruption. But equally immense is our determination to make heritage an anchor in an ever-changing world. And this determination is also being passed on to the young people who have come from 31 countries for the World Heritage Young Professionals Forum, which is taking place this week in Uttar Pradesh. Excellencies, honorable guests, this country is an inspiration for UNESCO. Like all visitors, and like we've seen in the video just shown, I am struck by the unique way in which the country constantly reinterprets its infinitely rich cultural heritage. We feel this very clearly in New Delhi, near where the Mahabharata is set. The Taj Mahal, the temples of Malipuram and Khajuraho, the sacred ensembles of the Hoysalas, each of the 42 Indian treasures inscribed on UNESCO's World Heritage List, bring together past, present, but also future generations, as do the Kalbilia dances of Rajasthan, the Garba of Gujarat, the chants of Ladakh, the crafts of Jandiala Guru, the theater of Kutyatam, all of them inscribed on UNESCO's intangible heritage list. And building on this rich past is also bringing heritage protection at the highest place of the international agenda. When India held the presidency of the G20 last year, leaders called for the first time for culture to be placed at the heart of the post-2030 agenda for sustainable development. And in this way,
India has helped culture gain recognition as a global public good, one that should be included in the Pact for the Future to be adopted by the UN this September. It was also under India's presidency and with UNESCO support that the G20 endorsed the Kashi Culture Pathway, which focuses on the fight against illicit trafficking and the restitution of cultural property. And these topics are the focus of the exhibition that I was pleased to open with the Prime Minister a few minutes ago. I would want to thank you for this. India knows too that the preservation of cultural heritage is inseparable from the protection of natural heritage. We see here, like in many other parts of the world, the devastating impacts of climate disruption on our lives and on heritage. I know that it's also at the heart of the discussion of the Young Professional Forum, and we're eager to listen to their contribution at this committee. Ladies and gentlemen, India's tradition accords great importance to the idea of duty, of dharma. Tomorrow, may we fulfill our dharma for the world's cultural and natural heritage. I thank you for your attention. Thank you so much, Ms. Audrey Azoulay, for your insightful address. And now, ladies and gentlemen, it is my great pleasure to invite the visionary leader who has championed the cause of heritage conservation and cultural diversity, our esteemed Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, to address the distinguished audience and inspire us with his vision, enlighten us with his thoughts. Ladies and gentlemen, Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी एस जयशंकर जी, गजेंद्र सिंह शेखावत जी, यूनेस्को की डायरेक्टर जनरल ऑड्रे अजौले जी, मंत्रिमंडल के मेरे अन्य सदस्य राव इंद्रजीत सिंह जी, सुरेश गोपी जी और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के चेयरमैन विशाल शर्मा जी, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज भारत गुरु पूर्णिमा का पवित्र पर्व मना रहा है। सबसे पहले मैं आप सभी को और सभी देशवासियों को ज्ञान और अध्यात्म के इस पर्व की बधाई देता हूं। ऐसे अहम दिन आज 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की इस मीटिंग की शुरुआत हो रही है और भारत में ये आयोजन पहली बार हो रहा है और स्वाभाविक है कि मेरे सहित सभी देशवासियों को इसकी विशेष खुशी है। मैं इस अवसर पर पूरी दुनिया से आए सभी डिग्निटरीज और अतिथियों का स्वागत करता हूं। खास तौर पर मैं यूनेस्को की डायरेक्टर जनरल ऑड्रे अजौले का भी अभिनंदन करता हूं। मुझे विश्वास है हर ग्लोबल आयोजन की तरह ये इवेंट भी भारत में सफलता के नए कीर्तिमान गढ़ेगा। साथियों, अभी मैं विदेशों से वापस लाई गई प्राचीन धरोहरों की प्रदर्शनी भी देख रहा था। बीते वर्षों में हम भारत की 350 से ज्यादा
प्राचीन धरोहरों को वापस लाए हैं। प्राचीन धरोहरों का वापस आना ये वैश्विक उदारता और इतिहास के प्रति सम्मान के भाव को दिखाता है। यहां इमर्सिव एग्जीबिशन भी अपने आप में एक शानदार अनुभव है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होगी, इस क्षेत्र में रिसर्च और टूरिज्म की अपार संभावनाएं भी बनती जा रही हैं। फ्रेंड्स, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का ये कार्यक्रम भारत के लिए एक गौरवशाली उपलब्धि से जुड़ा है। मुझे बताया गया है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ऐतिहासिक मोइदम यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल होना प्रस्तावित है। ये भारत की 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की पहली धरोहर होगी जिसे कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिल रहा है। मोइदम अपनी विशेषताओं के कारण बेहद खास है। मुझे विश्वास है वर्ल्ड हेरिटेज सूची में आने के बाद इनकी लोकप्रियता और बढ़ेगी, दुनिया का आकर्षण बढ़ेगा। साथियों, आज के इस आयोजन में दुनिया के कोने कोने से आए एक्सपर्ट्स, ये अपने आप में इस समिट की समृद्धि को दर्शाता है। ये आयोजन भारत की उस धरती पर हो रहा है जो विश्व की प्राचीनतम जीवंत सभ्यताओं में से एक है। हमने देखा है विश्व में विरासतों के अलग अलग केंद्र होते हैं, लेकिन भारत इतना प्राचीन है कि यहां वर्तमान का हर बिंदु किसी न किसी गौरवशाली अतीत की गाथा कहता है। अब दिल्ली का ही उदाहरण ले लीजिए। दुनिया दिल्ली को भारत की कैपिटल सिटी के रूप में जानती है, लेकिन ये शहर हजारों वर्ष पुरानी विरासतों का केंद्र भी है। यहां आपको कदम कदम पर ऐतिहासिक विरासतों के दर्शन होंगे। यहां से करीब 15 किलोमीटर दूर ही कई टन का एक लौह स्तंभ है। एक ऐसा स्तंभ जो 2000 वर्षों से खुले में खड़ा है, फिर भी आज तक रस्ट रेजिस्टेंट है। इसे पता चलता है कि उस समय भी भारत की मेटलर्जी कितनी उन्नत थी। स्पष्ट है कि भारत की विरासत केवल एक इतिहास नहीं है, भारत की विरासत एक विज्ञान भी है। भारत की हेरिटेज में टॉप नॉच इंजीनियरिंग की एक गौरवशाली यात्रा के भी दर्शन होते हैं। यहां दिल्ली से कुछ सैकड़ों किलोमीटर दूर ही 3500 मीटर्स के एल्टीट्यूड पर केदारनाथ मंदिर है। आज भी वो जगह
भौगोलिक रूप से इतनी दुर्गम है कि लोगों को कई कई किलोमीटर पैदल चलकर या हेलीकॉप्टर से जाना पड़ता है। वो स्थान आज भी किसी कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत चैलेंजिंग है। साल के ज्यादातर समय बर्फबारी की वजह से वहां काम होना पाना असंभव है। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि केदार घाटी में इतने बड़े मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था। उसकी इंजीनियरिंग में कठोर वातावरण और ग्लेशियर का पूरा ध्यान रखा गया। यही नहीं, मंदिर में कहीं भी मॉर्टर का इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन वो मंदिर आज तक अटल है। इसी तरह दक्षिण में राजा चौल द्वारा बनाए गए बृहदीश्वर मंदिर का भी उदाहरण है। मंदिर का आर्किटेक्चरल लेआउट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशंस, मंदिर की मूर्तियों, मंदिर का हर हिस्सा अपने आप में आश्चर्य लगता है। फ्रेंड्स, मैं जिस गुजरात राज्य से आता हूं, वहां धौलावीरा और लोथल जैसे स्थान है। धौलावीरा में 3000 से 1500 BCE पहले जिस तरह की अर्बन प्लानिंग थी, जिस तरह का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम और व्यवस्थाएं थी, वो 21वीं सदी में भी एक्सपर्ट्स को हैरान करते हैं। लोथल में भी दुर्ग और लोअर टाउन की प्लानिंग, स्ट्रीट और ड्रेन्स की व्यवस्था, ये उस प्राचीन सभ्यता के आधुनिक स्तर को बताता है। फ्रेंड्स, भारत का इतिहास और भारतीय सभ्यता ये सामान्य इतिहास बोध से कहीं ज्यादा प्राचीन और व्यापक है। इसलिए जैसे जैसे नए तथ्य सामने आ रहे हैं, जैसे जैसे इतिहास का वैज्ञानिक वेरिफिकेशन हो रहा है, हमें अतीत को देखने के नए दृष्टिकोण विकसित करने पड़ रहे हैं। यहां मौजूद वर्ल्ड एक्सपर्ट्स को उत्तर प्रदेश के सिनौली में मिले सबूतों के बारे में जरूर जानना चाहिए। सिनौली की फाइंडिंग्स कॉपर एज की हैं, लेकिन ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की जगह वैदिक सिविलाइजेशन से मेल खाती है। 2018 में वहां एक 4000 साल पुराना रथ मिला है। वो हॉर्स ड्रिवन था। ये शोध, इन नए तथ्य बताते हैं कि भारत को जानने के लिए अवधारणाओं से मुक्त नई सोच की जरूरत है। मैं आप सभी से आह्वान करता हूं, नए तथ्यों में, उसके आलोक में इतिहास की जो नई समझ विकसित हो रही है, आप उसका हिस्सा बने, उसे आगे बढ़ाएं। फ्रेंड्स, हेरिटेज केवल हिस्ट्री नहीं, बल्कि ह्यूमैनिटी की एक साझी चेतना है। हम दुनिया में कहीं भी किसी भी हेरिटेज को देखते हैं तो हमारा मन वर्तमान के जियो पॉलिटिकल फैक्टर से ऊपर उठ जाता है। हमें हेरिटेज के इस पोटेंशियल को विश्व की बेहतरी के लिए प्रयोग करना है। हमें अपनी विरासतों के जरिए दिलों को जोड़ना है। और आज 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग के माध्यम से भारत का
पूरे विश्व को यही आह्वान है, आइए हम सब जुड़े एक दूसरे की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए। आइए हम सब जुड़े मानव कल्याण की भावना के विस्तार के लिए। आइए हम सब जुड़े अपनी हेरिटेज को संरक्षित करते हुए टूरिज्म बढ़ाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके बनाने के लिए। फ्रेंड्स, दुनिया ने वो दौर भी देखा है जब विकास की दौड़ में विरासत को नजरअंदाज किया जाने लगा था, लेकिन आज का युग कहीं ज्यादा जागरूक है। भारत का तो विजन है विकास भी, विरासत भी। बीते 10 वर्षों में भारत ने एक और आधुनिक विकास के नए आयाम छुए हैं, वहीं विरासत पर गर्व का संकल्प भी लिया है। हमने विरासत के संरक्षण के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर हो, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का आधुनिक कैंपस बनाना हो, देश के कोने कोने में ऐसे अनेकों काम हो रहे हैं। विरासत को लेकर भारत के इस संकल्प में पूरी मानवता की सेवा का भाव जुड़ा है। भारत की संस्कृति स्वयं की नहीं, वयम की बात करती है। भारत की भावना है नॉट मी, रादर यस। इसी सोच के साथ भारत ने हमेशा विश्व के कल्याण का साथी बनने का प्रयास किया है। आज पूरा विश्व इंटरनेशनल योग दिवस मनाता है। आज आयुर्वेद विज्ञान का लाभ पूरी दुनिया को मिल रहा है। ये योग, ये आयुर्वेद, ये भारत की वैज्ञानिक विरासत है। पिछले साल हमने G20 समिट को भी होस्ट किया था। इस समिट की थीम थी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर।